Hello everyone, this is the sixth lecture on structure of atom, and in this lecture we will discuss quantum numbers. As you know, in previous lecture we have started quantum mechanical model, and the quantum numbers belong to that quantum mechanical model of atom. Now the question is, how do we define quantum numbers? So the quantum numbers are the set of four numbers which give complete information about the electrons present in an atom. So remember, तो अगर आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में जानना है तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर एक सेट होता है चार नंबर्स का जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में प्रेजेंट है. नाउ विच आर दीज फोर क्वांटम नंबर्स? सो दीज फोर क्वांटम नंबर्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, azimuthal quantum number, then magnetic quantum number, and fourth spin quantum number. So we will discuss them one by one and see how will they give the complete information about the electrons present in an atom. तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देते हैं. मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज एक एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए चार क्वांटम नंबर्स होंगे. अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों के लिए चार चार अलग अलग क्वांटम नंबर्स होंगे. इसीलिए अगर 10 या 15 या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब के लिए चार क्वांटम नंबर्स का एक सेट होगा और उससे ही हमको किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है. तो आपको ध्यान रखना है कि ये चार जो नंबर्स होते हैं वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को बिलोंग करते हैं. अगर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कोई दूसरे चार नंबर्स होंगे. तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्वांटम नंबर्स की हम बात करते हैं, these quantum numbers will give the information about the electrons. So the first is principal quantum number. So what is the principal quantum number and what is the value of principal quantum numbers? So you have to remember the value of principal quantum number. It is a natural number which is greater than 0 and up to infinity. तो n की जो वैल्यू होती है, n lies from 1 to infinity. तो n can be equal to, the value of n can be equal to 1, 2, 3, 4 up to. So these are values, possible values of principal quantum numbers. Now the question is, how does it give the information about the electrons? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको वही ध्यान में रखनी है कि ये इंफॉर्मेशन कैसे देता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो कि किसी एटम में प्रेजेंट है. तो n की वैल्यू आपको पता चल गई. n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है. एंड हाउ विल वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन? सो द फर्स्ट थिंग दैट इट विल टेल यू इज द शेल इन विच द एटम इज प्रेजेंट. तो आपको पता है, सपोज this is the nucleus, then first shell, second shell, third shell and so on. So first shell आपको ध्यान रखना है, shell is different from orbit. Orbit को हम क्या समझते हैं? Orbit is a circular path. Orbit क्या है? एक circular path है, जबकि shell एक 3-dimensional path है. Now the shell, the first shell is represented by n equal to 1, then n equal to 2, n equal to 3, then fourth shell n equal to 4, or this shell is also known as K, L, M, N and so on. तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ये पता चलता है कि n की वैल्यू से कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है. इफ द वैल्यू ऑफ n is 1, then it means the electron is present in first shell. If the value of n is 2, it means the electron in second. The value of n is 3, the electron is present in third shell and so on. तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको ये पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है. Then the second information, that is about the energy of the electron. So energy of electron is given by 1 by 4 pi epsilon naught 2 pi square m e raised to power 4 z square by n square h square. So this is the energy of an electron present in an atom. तो एनर्जी हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है.
तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ En दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 होल स्क्वायर 2π² me⁻⁴z² n² h²। तो आपको पता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू माइनस, बिकॉज इट कम्स विद नेगेटिव साइन, so this is equal to minus 1312 z² by n² kilojoule per mole. So that is approximately equal to 1312 z² by n² kilojoule per mole, where z is atomic number of that atom or that element, and n represent the number of shell, n represent the प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का भी पता कर सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग दैट इट विल गिव यू इज द रेडियस ऑफ द शेल ऑफ एन एटम। सो द शेल, द रेडियस दैट इज Rn, En represents the energy of electron present in nth shell. So similarly the Rn represents the radius of shell in which the electron is present. So Rn is given by 4πε0 n² divided by 4π² me²z. So that is approximately equal to 0.529 into n² by z angstrom. So this is the radius of the shell in which the electron is present. तो हमको दो चीज़ें मिल गई, एनर्जी एंड रेडियस। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जो मेन तीन इंफॉर्मेशन हमको मिली, पहला हमको ये पता चला कि उस इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो कौन से शेल में वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दूसरी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से क्या मिली कि जो एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होगी, कैसे, ऐसे। The third information that we get from here is the radius of the shell in which electron is present. तो radius shell की ये हो जाएगी। So these are the three informations that we get from the principal quantum numbers. So इतनी information हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही quantum number से मिल जाती हैं। One more information that you get from here is the maximum number of electrons which are possible in a shell. किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, दैट इज गिवन बाय 2n²। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज पॉसिबल इन अ शेल इज 2n²। सो फॉर फर्स्ट शेल it is 2, for second shell it is 8, for third shell it will be 2 into 3 square, that is 18, for fourth shell it will be 2 into 4 square, that is 32, for fifth shell it will be 2 into 5 square, that is 50, and so on. So you can see the first shell K, then L, then M, then N, and so on. So these informations are given by only one quantum number, that is N, or principal quantum number. Now the second is azimuthal quantum numbers. अब इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्यों बोलते हैं आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि अगले दो क्वांटम नंबर्स जो हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं. हाउ? सो लेट्स सी द फर्स्ट थिंग, द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर. तो वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर लाइज फ्रॉम 0 टू n-1. इसकी वैल्यू 0 और n-1 के बीच में ही लाई करेगी, इससे ज़्यादा या 0 से कम नहीं होगी. So it means if the value of n is 1, then the value of L will be 0. Remember, क्योंकि n-1 is 0, so 0 to 0, the value of L will be from 0 to 0, केवल 0 ही value होगी. If the value of n is 2, so the value of L, the possible values of L are 0 and 1. Okay, if the value of n is 3, the value of L will be 0, 1 or 2. If the value of n is 4, the value of L will be 0, 1, 2, 3 and so on. So you can see the value of L depends on the value of n. L की जो value होगी वो n की value पे depend करेगी. Now the question is,
व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो मेन वही है कि इंफॉर्मेशन हमको क्या क्या मिलती है एजीमुथल क्वांटम नंबर से। अगेन मैंने आपको बताया है ये 4 क्वांटम नंबर्स का एक सेट होगा। तो जो 4 क्वांटम नंबर्स का एक सेट होगा वो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर मिल गई तो वहाँ पे l की 2 वैल्यू नहीं होगी। मीन्स कि अगर यहाँ पे l की वैल्यू 0 है, अगर n इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू 0 ही पॉसिबल है। अगर n इक्वल टू 2 है तो l की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, 0 भी हो सकती है या फिर 1 भी हो सकती है। किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों वैल्यू नहीं होंगी, एक ही वैल्यू होगी। उसी तरीके से अगर n 3 है तो l 0, 1 या 2 हो सकता है। तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी गेट फ्रॉम हेयर इज द सब शेल। द सब शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो जिस सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसकी इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। नाउ दीज सब शेल्स आर गिवन सम नेम्स। फॉर एग्जांपल, if the value of L is 0, if the value of L is 0, the name of subshell in which the electron is present is called S subshell. If it is 1, then it is called P subshell. If it is 2, then it is called D subshell. It is 3, then it is called F subshell. So you can see the name of subshells. तो मतलब इससे हमको ये पता चलता है एजीमुथल क्वांटम नंबर से कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया। मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने अभी तक लास्ट लेक्चर का वीडियो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस पर वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि कोई भी एटम होता है उसमें जो भी शेल्स होती हैं, किसी भी शेल में उसके बाद सबशेल्स होती हैं और देन ऑर्बिटल्स होती हैं। तो आपको एक पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि अगर एटम है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट होंगे, शेल्स, और उन सेल्स में होती हैं सबशेल्स और सबशेल्स में होती हैं ऑर्बिटल्स जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं, अगर n की हम बात कर रहे हैं तो n 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। एंड l की वैल्यू जो होगी वो डिपेंड करेगी n की वैल्यू पे। अब ये l की वैल्यू से हमको क्या पता चलता है, सब शेल का, कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि शेल में तो प्रेजेंट होगा लेकिन उस पर्टिकुलर शेल की कौन सी सब शेल में वो प्रेजेंट है। तो अगर l की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, s सब शेल में। 1 होगा तो p सब शेल में, 2 होगा तो d सब शेल में, और 3 होगा तो f सब शेल में। तो s p d f, ये 4 आप याद रखिए। देन इसके अलावा द सेकेंड इंफॉर्मेशन, जो दूसरी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, दैट इज द नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन अ शेल। एक शेल में कितनी सबशेल्स होती हैं वो हमको यहाँ से पता लगता है। तो जैसे पिछले में हमको ये पता लगा था कि किसी एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वो डिपेंड करता है सबशेल्स पे। तो एक शेल में कितनी सबशेल्स होती हैं वो पता चलता है हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर से ही। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से कैसे पता चलता है, जितने एजीमुथल क्वांटम नंबर्स पॉसिबल होंगे उतने ही सबशेल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ n इज इक्वल टू 1, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट शेल। इफ n इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ l इज 0। l की केवल एक ही वैल्यू आ रही है 0। इसका मतलब जो फर्स्ट शेल होगी इसमें केवल एक ही सब शेल होगी, दैट इज s सब शेल। फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होती है और वो होती है s सब शेल। इट इज क्लियर। नाउ द सेकंड इज इफ द वैल्यू ऑफ n इज 2। अगर n की वैल्यू 2 है इट मीन्स द वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 0 और 1। तो l की जो वैल्यू होगी या तो 0 होगी या तो 1 होगी। l की वैल्यू 0 होगी तो उसमें s सब शेल होगी, l की वैल्यू 1 होगी तो उसमें p सब शेल भी होगी। तो जो सेकंड शेल होती है उसमें 2 सब शेल्स होती हैं, s एंड p। सिमिलरली द थर्ड शेल जो होती है उसमें l की 3 वैल्यू होती हैं, 0, 1 एंड 2। तो अगर 0 होती है तो इसका मतलब उसमें s सब शेल है, अगर 1 होती है तो उसका मतलब उसमें p सब शेल है, और अगर 2 होता है तो d सब शेल है। इसका मतलब थर्ड शेल में d सब शेल होगी, s होगी, p होगी और d होगी। तो इसका मतलब s तो सब में होगी, l इक्वल टू 0 तो सबके लिए आएगा। अगर l इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब फर्स्ट शेल में केवल एक ही सब शेल होगी, दैट इज s। सेकेंड शेल में s एंड p, थर्ड शेल में s, p एंड d, फोर्थ में s, p, d एंड f। इसका मतलब f सब शेल जो होगी वो फोर्थ शेल से शुरू होगी। उसी तरीके से फिफ्थ शेल में जो होंगे वो 5 सब शेल होंगी। तो इससे हमको ये भी पता चल रहा है कि किसी भी शेल में कितनी सब शेल्स होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होगी s, सेकंड में 2 होंगी s एंड p, थर्ड में 3 s p d, फोर्थ में 4 s p d एंड f। तो
जो डी सबशेल होती है वो थर्ड से शुरू होती है, एफ सबशेल फोर्थ से शुरू होती है। नाउ वन मोर इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन हमको ऑलरेडी मिल चुकी हैं। द फर्स्ट इज द सबशेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग एंड द सेकेंड इज द नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल। तो किसी भी एक शेल में कितने सबशेल्स होते हैं ये भी हमको पता चल गया, और हमको ये भी पता चल गया कि जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं वो किस सबशेल में होगा। नाउ द वन मोर थिंग दैट यू हैव टू नो इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है, सो इट इज गिवन बाय L. So the value of L angular momentum is equal to h by 2 pi into square root of L into L plus 1. So L represents the angular momentum. L angular momentum को represent करता है, और जो value होती है L की that is h by 2 pi into square root of L into L plus 1. तो हमको क्या पता चलता है और इसके बारे में, एंगुलर मोमेंटम कितना है इलेक्ट्रॉन का। अब हमको यहाँ से एक और चीज़ पता चलती है, दैट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन दैट सबशेल। उस सबशेल की जो ऑर्बिटल्स होंगी उनका शेप क्या होगा, दैट इज नोन विद द हेल्प ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला कि कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, दूसरा हमको ये पता चलता है कि किसी भी शेल में कितने सबशेल्स होते हैं, तीसरा कि उस पर्टिकुलर शेल में या सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, और चौथा कि उस सबशेल्स की जो ऑर्बिटल्स होंगी उनका शेप कैसा होगा। तो शेप के बारे में हम अभी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो ये चार क्वांटिटीज़ हमको, चार इंफॉर्मेशन हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिलती हैं। द नेक्स्ट थिंग इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। Now the magnetic quantum number is denoted by M. Magnetic quantum number is denoted by M. And what is the possible value of magnetic quantum number? So see, the magnetic quantum number lies from minus L to L. Magnetic quantum number depend करेगा L की वैल्यू पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। Magnetic quantum number लाइज फ्रॉम L माइनस L टू L। तो माइनस L से L तक लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ n इज इक्वल टू 1 एंड L इज इक्वल टू 0, इफ n इज इक्वल टू 1 देन L इज इक्वल टू 0, ये आपको ऑलरेडी पता है। देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल बी 0 बिकॉज 0 to 0। सिमिलरली इफ n इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 0 एंड 1, देन m इज इक्वल टू। नाउ अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है कि इफ n इज इक्वल टू 1 एंड L इज इक्वल टू 0 देन m इज इक्वल टू 0, बट इफ L इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ m विल बी -1 0 एंड 1। -1 से 1 तक लाई करेगा। अगर L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 होगी। देन सिमिलरली इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, तो अगर n की वैल्यू 2 होगी तो L की वैल्यू क्या हो सकती है, L विल बी इक्वल टू 0 और L इज इक्वल टू 1 और L इज इक्वल टू 2। देन द वैल्यू ऑफ m इज 0 और द वैल्यू ऑफ m इज -1 0 एंड 1, और यू कैन सी द वैल्यू ऑफ m इज -2 -1 0 1 एंड 2। सो आपको यहाँ से पता चल गया कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी m की। नाउ अगेन द नेक्स्ट थिंग, द इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सबशेल। किसी भी एक सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं वो हमें पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से। हाउ? If the value of n is 1, so we will not talk about just shell, we will talk about subshell. So if the value of L is 0, the value of m is 0. अगर L की वैल्यू 0 होती है, L की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब हम कौन से सबशेल के बारे में बात कर रहे हैं। इफ L इज इक्वल टू 0, सबशेल कौन सी है, S सबशेल है। इफ L इज इक्वल टू 1 वो P सबशेल है। इफ L इज इक्वल टू 2 वो D सबशेल है। इफ L इज इक्वल टू 3 वो F सबशेल है। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अगर हम एस सबशेल की बात कर रहे हैं,
एस सब शेल के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। एल इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कौन सी सब शेल है? एस। तो उसके लिए एम की कितनी वैल्यू आ रही है? एक वैल्यू आ रही है, दैट इज 0। तो इसका मतलब एस सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी? जितनी एम की वैल्यूज होंगी। एम की हर एक वैल्यू, एम की एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगी। सो इफ एल इज इक्वल टू 0 इट मीन्स वो एस सब शेल है, और अगर एस सब शेल है तो वहां पे ऑर्बिटल्स कितनी होंगी? एक। तो आपको ध्यान रखना है एस सब शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। नाउ इफ द वैल्यू ऑफ एल इज 1, अगर एल की वैल्यू 1 होती है, द वैल्यू ऑफ एम विल बी -1, 0 और 1। इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, और मैंने क्या कहा? एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। सो इफ द वैल्यू ऑफ एल इज 1, देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम। तो एम की 3 वैल्यूज होंगी। इसका मतलब एल इक्वल टू 1, कौन से शेल की हम बात कर रहे हैं? कौन से सब शेल की बात कर रहे हैं? दैट इज पी सब शेल। और पी सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी? दैट इज 1, 2 एंड 3। 3 ऑर्बिटल्स होंगी पी सब शेल में। तो एस सब शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होगी, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगी। इफ यू टॉक अबाउट द सब शेल डी, इफ एल इज इक्वल टू 2, अगर एल की वैल्यू 2 आती है तो एम विल बी इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2। तो 5 वैल्यूज आ रही हैं एल की। इसका मतलब डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। एंड सिमिलरली इफ द एल इज इक्वल टू 3, एल की वैल्यू अगर 3 होती है, दैट इज एफ सब शेल, वी आर टॉकिंग अबाउट एफ सब शेल। एफ सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? तो आप एम की वैल्यू अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ से, -3 to 3, दैट इज -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. So there are 7 values of m if L is equal to 3. इसका मतलब F सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होती हैं। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि कैसे ये काम करता है, कैसे हम क्वांटम नंबर्स की हेल्प से इंफॉर्मेशंस पता कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में। नाउ वन मोर थिंग, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। सो व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम स्पिन क्वांटम नंबर? As the name suggests, spin quantum number. So it will tell you about the direction of the spin of electron. आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो करता है, साथ ही साथ वो अपनी एक्सिस के अबाउट भी स्पिन करता है। तो कौन सी डायरेक्शन में? तो देयर आर ओनली 2 पॉसिबल डायरेक्शन, इधर इट विल स्पिन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रिवॉल्व कर सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर सकता है। सो देयर शुड बी 2 नंबर्स, वन इज रिप्रेजेंटेड बाय +½ and other is represented by -½ So these 2 numbers represent the direction of spin of an electron. तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ स्पिन के बारे में बता करते हैं कि ये जो डायरेक्शन ऑफ स्पिन होती है वो क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो एक को हम +½ से रिप्रेजेंट करते हैं एंड अदर इज रिप्रेजेंटेड बाय -½ तो ये 2 डायरेक्शन ऑफ स्पिन हो गई। तो अब हमको हर एक चीज़ पता चल जाती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में। सो लेट्स सी इट इन डिटेल्स। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन डिटेल्स। जरा एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं कि हमको कैसे शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स के बारे में पता चलता है। तो मान लेते हैं अगर n की वैल्यू 1 है, वैसे तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 काफ़ी आगे तक हो सकती है। अगर n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब हम कौन से शेल की बात कर रहे हैं? फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट शेल में होगी l की वैल्यू 0, इसका मतलब सब शेल कौन सी होगी? s। 0 मतलब s सब शेल। उसी तरीके से अगर हम m की बात कर रहे हैं तो m की वैल्यू कहाँ तक होती है? दैट इज़ फ्रॉम -L to L। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो वैल्यू होती है ये होती है -L to L, और जो L की वैल्यू होती है ये होती है 0 to n-1। तो अगर m की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब इसमें केवल ओनली 1 ऑर्बिटल, एक की ऑर्बिटल होगी। तो इसका मतलब, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ऑब्वियसली उनका स्पिन किधर हो सकता है? या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, -½ और +½ तो इसका मतलब हमको क्या पता चला कि जो पहली शेल होती है K शेल, उसमें एक ही सब शेल होती है और उस सब शेल में भी एक ही ऑर्बिटल्स होती हैं। तो अगर मैं टोटल ऑर्बिटल्स की बात करूं तो फर्स्ट शेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होती है। चलिए अब चलते हैं हम सेकंड शेल पे। तो सेकंड शेल पे हम बात करते हैं। सेकंड शेल के लिए हम क्या कहते हैं इसको? L
शेल भी कहते हैं, एल से भी डिनोट करते हैं हम इसको। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो आपको पता है l की वैल्यू 0 से लेके 1 तक आएगी, 2 से 1 कम, तो 0 या फिर 1 हो सकती है l की वैल्यू। अगर l की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब इसमें s सब शेल होगी, और 1 भी हो सकती है तो इसका मतलब इसमें p सब शेल भी होगी। तो इसका मतलब क्या पता चला कि जो सेकंड शेल है इसमें 2 सब शेल है। अब इन 2 सब शेल में क्योंकि इसमें s सब शेल भी है और इसमें p सब शेल भी है, तो s सब शेल में क्योंकि m की वैल्यू 0 आती है तो एक ऑर्बिटल यहाँ पे हो गई हमारे पास, और 1 2 3 p सब शेल में, क्योंकि p सब शेल के लिए जो m की वैल्यू होगी दैट इज फ्रॉम -l टू l, मतलब -1 to 1, तो -1 0 और 1 तीन वैल्यू, सारी की सारी रियल वैल्यूज नहीं है, केवल इंटीग्रल वैल्यूज होंगी। तो -1 to 1, 1 2 3, तीन हमको सबशेल, तीन हमको यहाँ पे ऑर्बिटल्स मिल गई। तो इन तीन ऑर्बिटल्स को हम जनरली नाम देते हैं, जैसे इसको px, py और pz। तो ये तीन ऑर्बिटल्स यहाँ पे हमको मिल गए। s में आपको, क्योंकि आपको पता है एक ही ऑर्बिटल होती है तो उसको हमको नाम देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम इनको तीन नाम से जानते हैं, px, py एंड pz। तो ये तीन ऑर्बिटल्स हो गए। तो अब आप देख सकते हो जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल में 2 सब शेल है, उनमें से जो पहली सब शेल है यानी कि s में एक ऑर्बिटल यहाँ है और p में 3 ऑर्बिटल यहाँ है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी हो गई सेकंड शेल में, वो हो गई 4 ऑर्बिटल्स। अब एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, हर ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनके स्पिन -12 हो सकते हैं और +12। तो इसका स्पिन जो s सब शेल में जो ऑर्बिटल है उसका स्पिन क्या हो सकता है, -12 या +12 हो सकता है, या फिर p सब शेल में जो ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्पिन +12 -12 हो सकता है, किसी का भी, चाहे वो px हो, py हो, pz हो। तो इसके लिए भी +12 -12 आएगा, इसके लिए भी +12 -12, +12 या -12, +12 या -12, वो s की वैल्यूज आएंगी। तो इन चारों के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, सबके लिए अलग अलग वैल्यूज आएंगी s की, +12 और -12, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आ सकती है। तो अब आपको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो सेकंड शेल में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, टोटल 4। कैसे, एक s सब शेल में होती है और 3 p सब शेल्स में होती हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट 3, n = 3, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड शेल। थर्ड शेल मतलब उसको आप m से भी डिनोट करते हो। देन अगर l की वैल्यू बात करें तो l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, 0 से लेके 2 तक, n-1 तक जाती है, मतलब 2 तक ही जाएगी, तो 0 1 और 2। तो अगर l की वैल्यू 0 होती है इसका मतलब इसमें s सब शेल है, l की वैल्यू 1 है इसका मतलब p सब शेल भी है, और l की वैल्यू 2 है d सब शेल भी है, sp df, या ध्यान रखना आपको 0 1 2 3 sp df। तो s, p और d तीन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि इसमें ऑर्बिटल्स सब शेल की = 0 है तो m की वैल्यू केवल एक ही होती है। तो आपको ये ऑलरेडी पता है कि s सब शेल में केवल एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, तो एक ऑर्बिटल तो आपको यहाँ से मिल गई। फिर यहाँ से 1 2 3, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स आपको यहाँ से मिल गई। और m की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताती है। और d के लिए 1 2 3 4 5, तो d सब शेल भी है इसमें, तो 5 यहाँ से आपको मिल गई। तो आप टोटल काउंट कर सकते हैं, टोटल ऑर्बिटल्स कितनी आ रही हैं थर्ड सब शेल में, दैट इज 9। तो टोटल कितनी ऑर्बिटल्स आएंगी, 9। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि टोटल 9 हो जाएंगी, 9 ऑर्बिटल्स थर्ड शेल में होंगी। और ये थर्ड शेल में 9 ऑर्बिटल्स कैसे हुई, क्योंकि आपको पता है थर्ड शेल में 3 सब शेल होंगी, s, p और d। s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल और d में 5 ऑर्बिटल। तो आप सम कर सकते हो, दैट इज 9। तो टोटल 9 होती है, एक s ऑर्बिटल होती है, 3 p की ऑर्बिटल्स होती हैं और 5 d की ऑर्बिटल्स होती हैं। वैसे इन d की ऑर्बिटल्स को भी हम नाम देते हैं, जैसे एक का नाम है d xy, दूसरा है d yz, तीसरा है d zx, चौथे का नाम है d z² और पांचवें का नाम है d x² - y²। तो ये 5 ऑर्बिटल्स के आपको नाम ध्यान में रखना है कि इस नाम से हम इन 5 ऑर्बिटल्स को डिनोट करते हैं, dxy, dyz, dzx, dz² और dx² - y²। तो ये 5 नाम हो गए इनके। देन एक और चीज, अब हम बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ में भी आप देख सकते हो 0 1 2 3 जो l की वैल्यू होगी, क्योंकि n-1 तक, n कितना है 4 है, n-1 कितना हुआ 3, तो 0 से लेके 3 तक l की वैल्यू होंगी 4। l की वैल्यू हो गई यहाँ पे, इसका मतलब 4 क्या होंगे यहाँ पे, सबशेल्स होंगी। कौन कौन सी सबशेल्स हैं, s सबशेल, क्योंकि अगर 0 है तो s सबशेल होगी, 1 है तो p, 2 है तो d
और 3 है तो F। तो SPDF 4 सबशेल्स हो गई। देन हर सबशेल में, क्योंकि आपको पता है S सबशेल में 1 ऑर्बिटल होती है, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, D सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये आप ऑलरेडी जानते हो। F के लिए आपको पता है कि L की वैल्यू 3 होती है, तो मैंने आपको बताया था कि M की वैल्यू जो होगी कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, -L से लेके L तक। तो -L से लेके अगर L तक एग्जिस्ट करती है तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आप देख सकते हो, टोटल 7 वैल्यूज हो गए। तो यू कैन काउंट 1 + 3 4 + 5 9 + 7 दैट इज इक्वल टू 16। तो आपको टोटल कितनी ऑर्बिटल्स मिल रही है यहाँ पे, 16। तो 16 ऑर्बिटल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्पिन भी होगा। स्पिन का आपको ध्यान रखना है, स्पिन मैंने डिनोट नहीं किया है क्योंकि आपको पता चलता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्पिन 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, -½ और +½ -½ और +½ में से कोई एक स्पिन होगा, दोनों नहीं होंगे ऑब्वियसली, केवल एक ही स्पिन होगा। तो ये चीज़ शायद आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या पता होता है, यहाँ से n की वैल्यू से हमको ये पता चलता है कि जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं उसकी n की वैल्यू से हमको ये पता चलता है कि वो कौन सी शेल में है। फिर L की वैल्यू से ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर शेल की कौन सी सब शेल में है। फिर M की वैल्यू से ये पता चलता है कि उस सब शेल की भी कौन सी ऑर्बिटल में है। और S से ये पता चलता है कि उसका स्पिन किधर को है, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। अब आपको ध्यान रखना है, केवल इतनी ही इन्फॉर्मेशन नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बाकी बताई है, वो भी इन्फॉर्मेशन आपको पता होती हैं, बट ये मेन इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको पता होती हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अब आपको जो शेल्स हैं, जो एटम है, उसका एक हो चुका होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं किसी भी एटम में। मीन्स वो किसी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करते हैं, सर्कल बना के मूव नहीं करते हैं, वो डिफरेंट तरीके से मूव करेंगे। और अब वो कैसे मूव करेंगे और उनकी एग्जिस्टेंस कैसे होगी, शेप कैसे होता है ऑर्बिटल्स का, क्योंकि हमने अभी ये डिस्कस नहीं किया है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिटल्स का शेप हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगर क्वांटम नंबर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।